اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جھوٹ ہمارے دل و دماغ پر اتنا رچ بس گیا ہے کہ اگر کہیں سچ و سچائی نظر بھی آ جائے تو اسے شک کی نظر سے دیکھتے اور رد کر دیتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کامیاب اور سچ بولنے والے ناکام سمجھے جاتے ہیں. اگر کوئی کلرک یا آفیسر ایماندار اور سچ بولنے والا ہو تو اسے سب ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ الگ ہی دنیا کی مخلوق ہے، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بھی بے ایمانی، جھوٹ اور رشوت خوری میں ہاتھ رنگ لے، ورنہ یا تو نوکری سے جائے گا یا پروموشن یعنی ترقی رک جائے گی، یا کہیں دور ویرانے میں تبادلہ ہو جائے گا تاکہ سچ و سچائی کا گلا گھونٹ دیا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ سچے خدا کے سچے پیروکار بھی سچائی کا پرچم لہراتے ہوئے یا تو حق کی راہ میں قربان ہو گئے، سنگسار کیے گئے، قید میں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے، قتل کر دیے گئے یا صلیب پر چڑھا دیے گئے، مگر انہوں نے کسی قیمت پر سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ بھٹکے ہوئے گمراہ انسان کو محبت، امن، صلح، سلامتی اور سچائی کا راستہ دکھایا. اس لیے کہ سچائی کا سرچشمہ خدا ہے جو اپنی ذات و وجود، اپنے قول و فعل، وعدوں اور عہدوں کا سچا خدا ہے. الہامی پاک صحائف میں جس خدا کا ذکر پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہے، وہ سچا زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، اور باقی سب نام نہاد خداؤں کی اس خدائے واحد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. وہ زمین پر سے فنا ہو جائیں گے. یرمیہ نبی پاک الہامی کلام میں کہتا ہے، لیکن خدا بند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے. اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں. یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے. بے شک زندہ آسمانی خدا سچا خدا ہے. وہ ہم انسانوں کی طرح جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ اپنے ارادے بدل سکتا ہے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. خداوند خدا کی سچائی و صداقت اور کلام کے برحق ہونے کی گواہی پاک الہامی کلام میں یوں دی گئی ہے، تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے. کیونکہ خدا سچا ہے، اسی لیے اس کا کلام اور احکام بھی ابدی سچائی اور صداقت ہیں. تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں. پاک صحائف میں خدا کا پیارا اور نیک بندہ اپنے خداوند کے سچا اور پاک ہونے کی یوں گواہی دیتا ہے، خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے. اور داؤد نبی اپنے خداوند خدا کے حضور یوں التجا اور درخواست پیش کرتا ہے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے. میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں. اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں. میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر. اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما.
खुदाबंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदाबंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफकत और सच्चाई हैं। आपने खुदा के सच्ची और बरहक कलाम की रोशनी में देखा कि खुदा सच्चा है। खुदा की खुसूसियात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला अखलाकी खुसूसियात, यानी उसकी सीरत और किरदार, अदल व इंसाफ, वफादार व ताबेदारी, और दूसरा खुदा की हमादानी या मारफत कुल और कुदरत कामिला। मगर खुदा की सदाकत और सच्चाई का ताल्लुक उसकी अखलाकी खुसूसियात से है। जब हम कहते हैं कि खुदा सच्चा है, तो इससे उसकी सच्चाई को और ज्यादा तकवीयत और वुसअत मिलती है, क्योंकि सच उसकी जात और वजूद की बुनियाद और मरकज है। दूसरे लफ्जों में ये कि सदाकत और सच्चाई का चश्मा उसी में से बहता है। हक और सच्चाई का यही वो चश्मा है जो मसीह यीशु की सूरत दुनिया में आया, ताकि हम जो गुनाहों और बदकारियों के सबब बंजर जमीन की मानित सूख कर बेफल हो गए हैं, जिंदगी के पानी से तरोताजा और फलदार बनाए। इसीलिए यूहन्ना रसूल सच्चाई के चश्मे यानी मसीह खुदावंद की गवाही देते हुए कहता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप यानी खुदा के इकलौते का जलाल। आज लोग सच्चे खुदा के पास आने के लिए रात दिन न जाने क्या क्या जतन करते हैं, मगर एक बात तो वाज़ेह है कि सच्चे खुदा के पास आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी यसू मसीह। इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। इसलिए फजल व जलाल और हक व सच्चाई के चश्मे मसीह यीशु ने अपने बारे में खुद फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप यानी खुदा के पास नहीं आता। एक और मकाम पर उन्होंने आसमानी खुदा के सच्चा होने की यूं तस्दीक की, तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आप से नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो यानी खुदा सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। जैसे आज बहुत से लोग मसीह यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा नहीं मानते, वैसे ही रियाकार यहूदी भी हक और सच्चाई के चश्मे का इनकार करते थे, बल्कि उन्हें अपने रास्ते की दीवार समझते थे, क्योंकि वो उनकी झूठी रियाकाराना मजहबी जिंदगी को बेनकाब करते थे। इसलिए मसीह यीशु ने अपनी उलूहियत को उन पर जाहिर किया और कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने यीशु से कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मसीह यीशु में खुदा की सच्चाई को कबूल नहीं करते, तो हम भी रियाकार यहूदियों की तरह अपने गुनाहों में मरेंगे। और जब यहूदी मजहबी रहनुमाओं की मक्कारी और रियाकारी ने खुदा की सदाकत और सच्चाई को सलीब पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया, तो अपनी मौत से पहले मसीह खुदावंद ने आसमान की तरफ आंखें उठाकर यूं दुआ की, ए बाप यानी ए खुदा, वो घड़ी आ पहुंची। अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसू मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे।
इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का बेटा मसीह खुदावंद अबद से खुदा के साथ उसके जलाल में शामिल था और दुनिया पर खुदा का जलाल और सच्चाई जाहिर करके फिर आसमान पर जिंदा चढ़ गया, ताकि हमें भी आसमानी जलाल और सच्चाई का हिस्सा बनाकर हमेशा की जिंदगी दे। मगर आसमानी जलाल और सच्चाई और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए लाजिम है कि हम सच्चे दिल से सच्चाई के चश्मे मसीह खुदावंद के कलाम पर कायम रहें। आज आप जितने मर्जी बहाने करके मसीह खुदावंद का इनकार करें, मगर एक दिन उस अजली सच्चाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यहूदी भी मसीह यीशु में खुदा की सच्चाई का इनकार करते थे, मगर आइए गौर से सुनिए कि मसीह ने उनके बंद और तारीक जहनों पर से कैसे पर्दा उठाया और उन्हें मौका दिया कि वो भी झूठ और गुनाह की गुलामी से आजाद हों। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और फिर अपने शागिर्दों और पैरावकारों के लिए खुदावंद मसीह ने खुदा के हुजूर यूं दुआ की और बरकत दी। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो यानी पैरावकार भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। ये है इंजील की खुशखबरी का निचोड़ कि मसीह यीशु के पैरावकारों के पास एक जिंदा उम्मीद है कि जिस तरह उनका खुदावंद इस दुनिया का नहीं था, वो भी इस दुनिया के नहीं, क्योंकि वो खुदा की सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए गए हैं। और जब मसीह खुदावंद का इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने फिर भी अपनी सच्चाई को अपने पैरावकारों से दूर नहीं किया, बल्कि उनसे वादा किया कि वो आसमान से सच्चाई का रूह यानी मददगार भेजेंगे, ताकि मसीह के हर पैरावकार के अंदर हमेशा सुकूनत और रहनुमाई करे। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। लिहाजा मसीह के हर पैरावकार को चाहिए कि वो अपने खुदावंद में शादमान और खुश रहे और खुदा की हम्द व तमजीद रूह और सच्चाई से करे। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आओ सच्चे खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारी नजात हमारे नेक कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और खुदा के फजल की बख्शिश है, इसलिए कि खुदा फजल बख्शता है। जी हाँ, खुदा फजल बख्शता है। खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जरूर सुनिएगा।